Hello everyone, welcome back to Excel Learning. This is your digital learning platform and I am your Abhishek sir. Today we are going to learn from a railway carriage written by R.L. Stevenson. बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन एक पोएम है. लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हम लोग समझेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम, लेट मी know you that we have already uploaded a series of active to passive along with worksheet. Okay, if you have not watched those videos then please go and watch. All the links have been given in the description box. उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई समस्या हो रहा है, कुछ जानना है related to active to passive, then please feel free to ask me in the comment section. I will definitely get back to you. Right now, without wasting any more time, let's get into the chapter. From a railway carriage written by R.L. Stevenson. First point ये है कि ये एक थर्ड पर्सन नैरेटिव है. ओके, इट्स अ थर्ड पर्सन नैरेटिव एंड स्पीकर जो है एक स्मॉल चाइल्ड है. एक स्मॉल चाइल्ड है. देखो, हम लोग जब ट्रेन पे सफ़र करते हैं तब ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हैं तो हम लोगों को ये लगता है कि हर एक जो चीज़ है, हर एक जो नेचुरल जो ऑब्जेक्ट है वो सब पीछे भाग रहा है. हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग को ये लगता था कि वो सब पीछे दौड़ रहा है, पीछे भाग रहा है. हालांकि वो नहीं है. क्या होता है, हम ट्रेन में है, हर ट्रेन आगे चल रही होती है. राइट. सो यहाँ पे ये जो छोटा सा बच्चा है, he is enjoying this kind of adventure on the train, and that's why this poem has been written. The speaker of the poem is a small child. Clear? See, faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches. So many sights have been mentioned in the poem. First of all, fairies and witches, two supernatural elements. This question comes in the examination. Okay, mention the two supernatural elements that are mentioned in the poem. Faster than fairies and faster than witches. What is faster than fairies and faster than witches? The speed of the train. Right now the child is on the train and the train is running very fast and the child is looking outside the window. Okay, and the child is telling that our train or this particular train, the speed of this particular train is faster than fairies and faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches. And what the child can see from the train? The child can see bridges, houses, hedges and ditches. All these sites are very important. This question may also come in the examination that mention the sites that the child or the speaker can see from the train. Okay, so faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troop in a battle. And here the speaker is actually comparing the speed of the train with a troop. Troop means soldiers. ट्रूप मीन्स सोल्जर्स. बैटल फील्ड में क्या होता है? बैटल फील्ड में सोल्जर्स जो है वो बहुत लाइक फोर्सफुली चार्ज करता है एनिमी को. सो यहाँ पे ट्रेन का जो स्पीड है और ट्रेन इतना ज़ोर से आगे बढ़ रहा है, मान लो कि वो जो ट्रेन है ये ट्रेन एक सोल्जर की तरह बैटल फील्ड में आगे जा रही है. ठीक है. ऑल थ्रू द मीडोज, हॉर्सेज एंड कैटल, एंड द ट्रेन इज रनिंग थ्रू मीडोज. हॉर्सेज आर ऑल्सो देयर एंड कैटल आर also there. All of the sides of hill and plain, the child can see hill from the train, the child can see plain from the train, fly as thick as driving rain, and everything outside the train is moving so fast. I mean backward जा रहा है, पीछे इतना जोर से मानो कि ड्राइविंग रेन की तरह वो लोग आंखों के सामने से चला जा रहा है. एंड एवर अगेन इन एन विंक ऑफ एन आई. द विंक ऑफ एन आई मीन्स पलक झपटते ही. पेंटेड स्टेशंस विसल बाय. एंड जो पेंटेड स्टेशंस हैं यानी कि ब्राइटली कलर्ड जो स्टेशंस हैं वो स्टेशंस भी विद इन अ सेकेंड आंखों के सामने से गायब हो जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि उस ट्रेन का स्पीड ही इतना जोर है. तो यहाँ पे द फर्स्ट स्टैंजा एक्चुअली कन्वेज द हाई स्पीड of the train. Clear? This is important point. The first stanza tells us the high speed of the train. So what are the scene or what are the sights the child can see? The child can see bridges, houses,
ditches, okay, meadows, horses, cattle, hill, plain and पेंटेड स्टेशंस। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब और एक पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि राइमिंग स्कीम कौन सा है। देखो, विचेस डीचेस आ गया ए, क्लियर। बैटल एंड कैटल आ गया बी, प्लेन रेन आ गया सी, यहाँ पे आई एंड बाई आ गया डी। यानी कि इस पोएम का राइमिंग स्कीम है ए, बी, सी एंड डी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ओके, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए, बी, सी एंड डी। सो आई होप द फर्स्ट आंसर इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में भी ट्रेन का जो स्पीड है वो सेम है। अब देखो ये बच्चा क्या देख रहा है, हियर इज अ चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा, who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. So a small child can be seen by the child who is on the train right now, एंड द चाइल्ड जो फील्ड में है वो चाइल्ड क्लैम्बर कर रहा है, स्क्रैम्बल कर रहा है और ब्रैम्बल जो है वो गैदर कर रहा है। हियर इज ए ट्रैम्प, ट्रैम्प मीन्स जिनका कोई घर नहीं होता है, ठीक है। हियर इज ए ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेस, एक ट्रैम्प है जो खड़ा होके एकदम स्टीयर कर रहा है किसको, उस ट्रेन को। देखना ये हम लोग के साथ भी होता है कि मान लो कि किसी रिमोट एरिया पे अगर आप लोग चले जाओगे गाड़ी लेके, तो वहाँ का जो छोटा छोटा जो बच्चा है जो बाहर खेलता रहता है वो लोग गाड़ी के पीछे दौड़ता है। या फिर एकदम रिमोट एरिया में कोई है जो गाड़ी को घूरता रहता है। तो यहाँ पे सेम है, एक ट्रैम्प है जिसका कोई शेल्टर नहीं है, जिसका कोई घर नहीं है, वो खड़े होकर क्या कर रहा है, उस ट्रेन को घूर रहा है, ठीक है। एंड देयर इज ए ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग डेजीज एंड द चाइल्ड कैन सी डेजी फ्लावर्स ऑल्सो। हियर इज ए कार्ट रन अवे इन द रोड, और उस ट्रेन से वो बच्चा ये भी देख रहा है कि एक कार्ट है, ओके, वो कार्ट रन अवे कहाँ पे हो रहा है, रोड पे, लंपिंग अलॉन्ग विद द मैन एंड लोड। दैट्स मीन मान लो कि यहाँ पे एक कार्ट है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे चक्का है ऐसा, और यहाँ पे आपका कुछ एनिमल वगैरह कुछ है जो ये कर रहा है, यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे बहुत सारा लोड है। सो ये जो आपका जो कार्ट है इसमें क्या क्या है, लोड है, ओके, और यहाँ पे मैन है। और इस कार्ट को देख रहा है कौन, वो छोटा सा बच्चा ट्रेन से। दैट हियर इज द कार्ट रन अवे इन द रोड, द कार्ट इज इन द रोड एंड व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ द कार्ट इज लंपिंग along with the man and the load. That means we can say that the load is very heavy. The cart is just trying to maintain the balance. Clear? And here is a mill and there is a river. Mill means factory. Each a gleams and gone forever. और फिर उस बच्चे, वो वाला जो छोटा सा बच्चा है ट्रेन में, उसे एक फैक्ट्री भी दिखाई दिया, रिवर भी दिखाई दिया, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट जो वो बच्चा ट्रेन से देख रहा है, जस्ट मतलब पलक झपटते ही वो सारा चीज जो है वो गायब हो जा रहा है। वंस अगेन द सेकेंड स्टैंजा कन्वेज द हाई स्पीड ऑफ द ट्रेन, द हाई स्पीड ऑफ द ट्रेन। फर्स्ट स्टैंजा में ट्रेन जैसे स्पीड में था, सेकेंड स्टैंजा में भी ट्रेन सेम स्पीड में भी है। ओके, सो द आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर, द पोएम इज क्लियर। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा साइट वो देख रहा है, ठीक है, ये सब याद करके रखना। ब्रिजेस, हाउसेस, डीचेस, मीडोज, हॉर्सेस, कैटल, हिल, प्लेन, ठीक है, और यहाँ पे पेंटेड स्टेशंस। फिर सेकंड स्टैंजा में आ गया चाइल्ड, और फिर ट्रैम्प आ गया, डेजीज आ गया, कार्ट आ गया, मैन, लोड, रिवर, मिल, ये सब। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 2-3 साइट बताओ जो फर्स्ट स्टैंजा में मेंशन किया हुआ है, या फिर 2-3 साइट बताओ जो सेकंड स्टैंजा पे मेंशन किया हुआ है। ऐसा भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलो अब देख लेते हैं पोएटिक डिवाइस इसमें क्या क्या यूज किया गया है। ओके, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिट्रेशन यहाँ पे यूज किया गया है। एलिट्रेशन क्या है, सेम साउंड का जब रिपीटेशन होता है, फास्टर देन फेयर इज, एफ साउंड का यहाँ पे रिपीटेशन है। हाउसेस, हेजेस, एच साउंड का यहाँ पे रिपीटेशन है। ग्लीम्स एंड गॉन, जी साउंड का यहाँ पे रिपीटेशन है। सो दैट्स वाई दिस इज एलिटरेशन।
ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दिस इज सिमिली। सिमिली दो ऑब्जेक्ट में जब कंपैरिजन होगा और वो कंपैरिजन होगा लाइक से या फिर एज से, तब उसे कहा जाएगा सिमिली। देखो, एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल। सो यहाँ पे ट्रेन को कंपेयर किया गया है ट्रूप से और ये कंपैरिजन लिंक हुआ है लाइक से, दैट्स वाई दिस इज सिमिली। ओके, द सेकेंड एग्जाम्पल सेम है, फ्लाई एज थिक एज द ड्राइविंग रेन। यहाँ पे एज से कंपेयर किया गया है, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो सिमिली। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्या है। यहाँ पे पेंटेड स्टेशंस विसल बाय, यहाँ पे पेंटेड स्टेशंस जो है ये खुद काम कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन। एंड एंटायर पोएम में ट्रेन को भी पर्सोनिफाई किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट एनाफोरा। एनाफोरा होता है जब दो या फिर दो से ज़्यादा कंसेक्यूटिव लाइन या जब सेम वर्ड से शुरू होता है। यहाँ पे देखो, ये लाइन भी ऑल से शुरू हुआ है, सेकेंड लाइन भी ऑल से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे ये आपका आ गया एनाफोरा। और फिर आ गया रिपीटेशन, एक ही लाइन में देखो रिपीट हुआ है वर्ड, यहाँ पे दैन, यहाँ पे भी दैन, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डीचेस, सो इट्स रिपीटेशन। सो आई होप द फिगर ऑफ स्पीच, इसे लिटरेरी डिवाइस कहा जाता है या फिर पोएटिक डिवाइस कहा जाता है या फिर फिगर ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, फिगर ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। ओके, फिगर ऑफ स्पीच, आई होप क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द थीम्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्डहुड एडवेंचर। देखो, ये जो छोटा सा बच्चा अभी ट्रेन पे है, इसका जो लाइफ है या फिर ये जो देख रहा है ये बहुत ही एडवेंचरस है। हम आप अभी ट्रेन में जाएंगे तो हम लोग ये देख के हम लोग को एडवेंचरस फील नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है, वी नो द फैक्ट दैट एक्चुअली वी आर मूविंग, नॉट ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग बैक, राइट। सो वी नेवर फील द एडवेंचर। जब हम लोग छोटे थे तब शायद हम लोगों को ये एडवेंचरस फील हुआ था, बट राइट नाउ द चाइल्ड हु इज ऑन द ट्रेन इज एंजॉइंग द एडवेंचरस लाइफ, सो इट्स चाइल्डहुड एडवेंचर। नेक्स्ट वन इज एडोलेसेंस, चाइल्डहुड इनोसेंस जिसको कहा जाता है। वो छोटा सा बच्चा है, उसे पता नहीं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। सो यहाँ पे चाइल्डहुड या फिर जो है जो चाइल्डिश बिहेवियर है या फिर इनोसेंस है, वो भी एक थीम है। अम्यूजमेंट, द बॉय, द चाइल्ड इज वेरी मच अम्यूज्ड, बहुत खुशी हो रहा है उस बच्चे को कि अरे बाप रे बाप, हम लोग तो ट्रेन में है, देखो बाहर पेड़ सब पीछे जा रहा है, आसमान वो भी पीछे जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोल ये भी पीछे जा रहा है, रेलवे ट्रैक ये भी पीछे जा रहा है, रिवर भी पीछे जा रहा है, सब कुछ पीछे जा रहा है और वो बच्चा देख रहा है और वो बच्चा देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। सो हियर द अम्यूजमेंट इज अनदर थीम। एंड नेक्स्ट वन इज मोशन। ओके, सी ट्रेन का जो मोशन है, ट्रेन इतना ज़ोर से इतने स्पीड पे ट्रेन है, इसीलिए इस बच्चे को अम्यूजमेंट हो रहा है। सो मोशन इज अनदर थीम ऑफ द पोएम। So I hope the entire poem is quite clear to you. वीडियो पॉज करके देखो, जो पॉइंट मैंने कहा है आप लोग चाहो तो उसे लिख सकते हो, लिख लो। इसके बावजूद भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ जानना है, सो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। आज बस इतना था कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।